to share one verse which challenged my heart and also encouraged. That verse is in Matthew chapter 11. और आज एक वचन मैं बताना चाहता हूँ जिसने मुझे चुनौती दी है और मुझे प्रोत्साहन दी है, वो है मत्ती का 11वें अध्याय। Matthew chapter 11 verse 6. मत्ती उसका 11वें अध्याय उसका 6वां वचन। Somebody could read Hindi. कृपया हिंदी में पढ़ें। और धन्य है वो जो मेरे कारण ठोकर खाने से बचा रहता है। Amen. This is the word of Jesus. Blessed are the one who is not offended at me. और ये यीशु मसीह के मुंह से निकले हुए शब्द है जो कहता है कि धन्य है वो जो मेरे कारण ठोकर नहीं खाते। We are God. Jesus knows that all of us, we may get offended or feel hurt sometime, and we all go through such situation, through some circumstances, some situation, through some people. Jesus knows about it. और यीशु जानते हैं कि कई बार हमें बहुत जल्दी से बुरा लग जाता है और ठोकर खाते हैं, और हमारे आसपास में ऐसे भी लोग हैं जिनके किसी शब्द कहने से या उनके किसी बर्ताव की वजह से हमें बुरा लग जाता है। That time I have seen my whole life. I have been so many times. I have been gone through this situation. और कई बार मेरे भी जीवन में मैं ऐसे ही कई सारे हालात से गुजरा हुआ हूँ। That time we get offended because the way people behave with us, they speak to us. और जिस तरह से लोगों ने हमारे साथ बर्ताव किया है या हमारे साथ बातें की है, उसकी वजह से हमें कई बार बुरा लग जाता है। In spite of good thing we have done to them. और हमने उनके लिए हमेशा भलाई की है, फिर भी In spite of being with no fault in us. In spite of there is no fault in us. और हमें कोई गलती नहीं है फिर भी। And there are times that we get offended in our life. और कई बार हमारे जीवन में हम झट से ठोकर खा जाते हैं और या बुरा लग जाता है। Even sometimes we in our company where we are working also, when we have done good work, we don't see people appreciating or encouraging or recognizing. Still there also we get offended. और हमारे काम करने की जगह पर भी कई बार हमने बहुत से अच्छे काम की है, फिर भी उसको हमें कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता है, हमेशा कभी भी उसके लिए जो है अच्छी बातें कही नहीं जाती है, ऐसे मौके में भी हमें बुरा लग जाता है। We feel very much hurt in our life. और हमारे जीवन में हमको बहुत दुख लगता है, हम ठोकर खा जाते हैं। Why we are feeling hurt? और हमें बुरा क्यों लगता है? As brother said sometime about Brother Rajkumar sharing that the reason we feel hurt, we are hurt in our pride. और जैसे भाई ने बताया कि जैसे ब्रदर राजकुमार ने बताया कि हमें क्यों बुरा लगता है, और हमें इसलिए बुरा लगता है क्योंकि हमारे घमंड को ठेस पहुंचती है। Whenever I'm feeling I'm hurt, whenever I'm offended, that's where my sin, the pride is getting exposed. और जहाँ पर हमें बुरा लगता है, हमें ठेस पहुंचती है, वहाँ पर ही हमारे घमंड जो है खुलासे में आ जाता है। That's why we have to see that whenever I'm getting offended, whenever I'm feeling bad, what is that in me? Why it is happening to me? और इसलिए जरूरी है कि जब कभी हमें बुरा लगता है या ठेस पहुंचता है, हमें जांच कर परखना है कि ऐसा क्यों होता है मेरे साथ। That's where God shows me that there is so much pride in you. और इसी समय में परमेश्वर हमें बताता है कि तुम में कितना घमंड है। And there are times we feel wonder, we feel there are situations, sometimes why God is not helping me. और कई बार हमको ऐसे लगता है कि हमारे हालात में परमेश्वर मुझे मदद क्यों नहीं करता। We are praying to God. हम परमेश्वर से प्रार्थना करते Why हैं। so much difficulties in our life? Why so much suffering in my life? Why God is looking, God, all-knowing God, is living God. We are praying, He is here answer giving God. Why He is not helping me in this situation? और हमारे जीवन में कितने सारी मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, परमेश्वर इन सारी बातों को मेरे जीवन में क्यों अनुमति देता है, क्यों मुझे मदद नहीं करता। There are times we may feel offended towards God also. और कई बार ऐसे मौकों में हम परमेश्वर के प्रति भी हमें बुरा लगता है, ठेस पहुंचता है। That's what we see this incident. We see that regarding John the Baptist. और इसमें यहाँ पर इस सिचुएशन में हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है, We all know that John the Baptist who came to prepare the way for the Lord Jesus Christ. और हम सब जानते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा यीशु मसीह के सामने जो मार्ग है उसे बनाने के लिए वो आया था, He was sent by God. और वो परमेश्वर से भेजा हुआ था, He lived a so upright life. और उसने बहुत ही सिधाई का जीवन बिताया, He introduced Jesus into the world. और उसने यीशु मसीह के बारे में उसका जो है संदेश पहले से लेकर आया, Even He baptized Jesus Christ. और उसने यीशु मसीह को भी बपतिस्मा दिया, He recognized that the Holy Spirit coming upon him. और उसने पवित्र आत्मा जब उस पर उतर कर आया उसे पहचाना, He testified He is the Son of God. और उसने गवाही दी कि ये परमेश्वर का पुत्र है। But at some situation when he was put into jail,
लेकिन जब उसे बंदी घर में डाला गया and that's where he is sending his two disciples to go to Jesus और फिर वो अपने चेलों को यीशु के पास भेजता है to find out are you truly Jesus who you are the true Messiah or somebody else we have to wait. और फिर उसने वो चेलों से भेज कर कहला था कि तुम जाकर पूछो कि तुम ही सच्चा मसीहा हो या कोई और आने का बाकी है। Just wondering why if Jesus is the true living God, he could deliver so many people. He can remove, you can deliver people from sickness and demons, and he could help so many people. Why that same God could not help me? तब वो जो बंदीगृह में यूहन्ना बपतिस्मा शायद सोचा होगा कि ये जो सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह है, कितनों को उसने छुड़ाया है, कितनों को उसने शैतान के चंगुल से छुड़ाया है, ये क्यों मुझे बंदीगृह से छुड़ाएगा? Does he not know what I am going through? क्या वो नहीं जानता कि मैं किस हालात से गुजर रहा He हूँ? was feeling hurt, he was feeling bad, he was offended in that. और उसे बुरा लग रहा था, उसे दुख हो रहा था और उसे उस बात को लेकर ठेस पहुंच गई थी। That's why understanding this situation, Jesus he spoke to disciples that blessed are you if you don't get offended at me. और इसलिए उस बात को समझकर यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के चेलों से कहा कि तुम धन्य हो जो मेरे कारण ठोकर नहीं खाते। Because Jesus know that this has been arranged by God. There is a purpose behind what John the Baptist going through. That's why he was allowing God to work in his life. क्योंकि यीशु मसीह सही से जानते थे कि जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे परमेश्वर का जो है वायदा है और उसके पीछे परमेश्वर का कारण है, इसलिए उस बात को होने के लिए वो अनुमति देता है। Even though Jesus knew about the situation, he did not rush to help him, rush to rescue him. और यीशु मसीह इस बात को जानते हुए कि यूहन्ना बपतिस्मा बंदीगृह में था, फिर भी उसको तुरंत से मदद करने के लिए वो चला नहीं गया। Same thing that even when Lazarus was sick, he was almost dead. Jesus did not rush to help him. He was waited. और इसी तरह से लाजरस कभी हम देखते हैं कि वो मरने के बाद भी यीशु मसीह वहां पर तुरंत से उसको मदद करने के लिए भागे नहीं। Jesus knows that God has some purpose in everybody's life. और यीशु मसीह जानते हैं कि हर एक के जीवन में परमेश्वर का एक उद्देश्य है। That's what he understood that John the Baptist. और इसीलिए वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को But जानता John the था। Baptist could not understand that. लेकिन इस बात को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने पहचाना नहीं। Same way we may also sometimes we go through some situations, circumstances when we see that people the way behave and treat us, we may not able to understand. इसलिए कई बार हमारे जीवन में भी हमसे कई ऐसे हालातों से गुजरते हैं कि इस तरह से लोगों ने हमारे से बर्ताव किया है, हम उसको समझ नहीं पाएंगे। We may question God, why God you are silent, why you are not doing anything. और हम शायद परमेश्वर से प्रश्न कर सकते हैं कि तुम चुप क्यों हो, तुम क्यों नहीं कुछ करता? That's the reason. That's where we feel we lose the patience and we lose faith. और उसी समय पे ऐसे मौके में हम हमारे धीरज को खो बैठते हैं, हमारे विश्वास को खो बैठते हैं। Why John the Baptist was suffering? और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्यों दुख उठा रहा I was था? wondering why he was put into jail. और मैं ये भी सोच रहा था कि उसे बंदीगृह में क्यों डाला गया था? Not because of he sinned, और उसने पाप किया इसके लिए नहीं, just because he exposed the sin in the Herod and Herodias' life. और राजा हेरोद के पाप को उसने खुलासे में लाया, इसके लिए उसे बंदीगृह में डाला गया था। Because he spoke the truth. क्योंकि उसने सच्चाई को प्रकट किया। That's where we see that whenever we speak the truth, people get offended. और इसलिए हम देखते हैं कि जब कभी हम सत्य बात कहते हैं, सच्चाई को प्रकट करते हैं, लोगों को बुरा लग जाता है। He was going through suffering not for doing wrong, but he was suffering and even though what he did right. और कुछ गलत काम करने की वजह से वो दुख नहीं उठा रहा था, लेकिन सही काम को, सच्चाई को प्रकट करने की वजह से वो दुख उठा रहा था। That's why in the first Peter we see that Peter encouraging us that we are suffering for doing what is right, for speaking what is right. Blessed are you. और इससे पहला पत्रस में जैसे वहाँ पे हमें प्रोत्साहन देता है कि हम जो सही बात करने के लिए दुख उठाते हैं, हम धन्य हैं। Here John the Baptist suffered for doing what is right. और यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जो सही बात है उसको करने के लिए वो दुख उठाता है। He exposed the sin of the Herod and Herodians. और वो जो हेरोद राजा का पाप को उसने खुलासे में लाया, इसलिए वो दुख उठाता He है। revealed the truth about them. और उनकी जो सच्चाई को उसने खुलासे में ला दिया। I was wondering why this Herod was offended. और मैं ये सोच रहा था कि राजा हेरोद को बुरा क्यों लगा? Because when he was exposed, he was offended. क्योंकि जब उसकी जो असली बात है, उसको गुप्त बात है, जो खुलासे में ला दिया गया, तब उसे बुरा लगा। He did not want to repent. और वो मन फिराना नहीं चाहता था। Rather, he want to put John the Baptist into jail. लेकिन वो जो है वो यही चाहता था कि यूहन्ना बपतिस्मा को बंदीगृह में डाल दे। Same way, there are so many times when a man of God comes and speak to us, and when we are challenged about the truth about ourselves, we don't take into our heart. और इसलिए कई बार परमेश्वर के लोग जब हमारे पास आकर हमारे जीवन की असली बातों को सच्चाई से हमें बताते हैं, कई बार हमें बुरा लग जाता है। Whenever somebody comes and tells me you are proud, you are selfish, you are arrogant, there are times that people expose us, they
speak to us, but that's where I was in my own self. We start justifying ourselves. We just comparing with the ourselves, and we try to prove that I'm not like that, I'm not like this. और कई बार जब है परमेश्वर के लोग हमारे पास अगर हम हमसे बातें करते बताते कि देखो तुम्हें जो पाप है वो घमंडी हो, तुम अहंकारी हो, तुम्हें कई सारे ऐसे बातें जो गलत है, और ऐसे सुनकर हम अपने आप को सही ठहराने की कोशिश करते हैं कि नहीं ये इसलिए ऐसा हुआ या उसकी वजह से ऐसा हुआ। कभी भी हम पाप को मानते नहीं और हमें बुरा लग जाता है। Not willing to accept that the challenge is true in me. और हमारे अंदर में जो गलतियां हैं उसको हम मानने को तैयार नहीं होते। When we compare with ourselves with the Holy God, the Lord Jesus Christ, that's where we are able to see that our own sin. और जब अपने आप को हम पवित्र यीशु मसीह के साथ जब तुलना करते हैं, तब हमें हमारे अंदर का जो पाप है वो दिखने में आता है। Many times we fail to see that Jesus as example. और कई बार यीशु मसीह को एक उदाहरण होकर देखने से हम नाकाम हो We जाते always हैं। justify ourselves that we are right. और कई बार अपने आप को खुद से सही से अपने आप को बताने की कोशिश करते हैं। That's why we don't take correction and challenges which people gives and comes and gives. और इसलिए जब लोग हमें मार्गदर्शन करते हैं और हमें सलाह मशवरा देते हैं, उसे हम ग्रहण करने से मना करते हैं। And even when we come to the meeting, और जब हम कलीसिया में भी जब आते हैं and God expose our heart and truth in us, और जब परमेश्वर हमारे हृदय की बातों को खुलासे में लाता है, nobody knows, we know in our conscience and God knows. और हम कोई और हमारे गुप्त बातों को नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर जानता है। When we expose, when we challenge it, how we take it, how we respond it. और जब हमारी बातों को खुलासे में ले आता है परमेश्वर, तभी हम देखना चाहते हैं कि हम जो है इस बात की प्रतिक्रिया कैसे करते हैं। Sometimes we may think, why this brother, this sister is speaking like that to me? और कई बार मैं सोचता हूँ कि ये भाई या बहन मेरे साथ ऐसे क्यों बर्ताव कर रही है, क्यों बातें कर रही How he है। can speak like that to me? How he can speak in the meeting about me? और इसने मीटिंग में मेरे बारे में कैसे ऐसे बात किया। We can take so personal about the person who is speaking. और इस बात को बहुत ही गंभीरता से व्यक्तित्व रीति से हम उसे ले लेते हैं कि इस व्यक्ति ने मेरे बारे में क्यों ऐसे बात किया। That's why we see that we don't know the spirit of Christ in us. और तब हम देखते हैं कि मसीह यीशु का जो आत्मा है वो हमें वास नहीं करता। The one verse encouraged me. और एक वचन है जिससे मैं प्रोत्साहित हुआ। First Thessalonians chapter 2 verse 13. और पहला थिस्सलुनीका उसका दूसरा अध्याय 13वां वचन। Somebody can read in Hindi. पहले थेसलोनियन अध्याय 2 में 13। इस कारण हम भी सर्वदा परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जब हमारे द्वारा तुम्हें परमेश्वर के वचन का संदेश मिला, तो तुमने उसे मनुष्यों का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर ग्रहण किया। सचमुच वो है कि जो तुम विश्वासियों में अपना कार्य भी करता है। Amen. We see the spirit of Thessalonian disciples. और हम देखते हैं कि इस कलीसिया के जो चेले थे, When they hear the word of God, जब उन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना through brothers and sisters sharing in the church, और कलीसिया में जो भाई और बहनों के जरिए से जो संदेश सुना जा they रहा took था, into the heart और उन्होंने उस संदेश को अपने हृदय में ले लिया, as God speaking to them. जैसे कि परमेश्वर खुद उनसे बातें कर रहा हो। They were not looking to the people who are speaking. और उन्होंने मनुष्य की तरह से जैसे मनुष्य हमसे बात कर रहा है ऐसे नहीं देखा। Of course, there were people who are speaking the God's word, और वहाँ पे परमेश्वर के जन भी परमेश्वर के वचन को बता तो रहे थे, but they took it as God is speaking to me. लेकिन सुनने वाले जो है परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है ऐसे उन्होंने ले लिया। That's why they took it in good spirit. और इसलिए उन्हें अच्छे आत्मा में उस बात को ले ली। That's why they could come out of, get rid of all the sin in their life. और इसलिए उनके जीवन में जो सारी पाप की बातें थे, पाप थे, उनसे वो छुटकारा पा So सके। when we hear God's word, और इसलिए जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, we should not take personally about the person who is speaking to us. और इसलिए जो व्यक्ति उस संदेश को ले आ रहा है, उस व्यक्ति को अपनी जीवन में व्यक्तिगत रीति से ये ले रहा वचन बता रहा है ऐसा नहीं जानना है। I have to understand that God is speaking, God is exposing my sin in me. लेकिन मुझे समझना है कि परमेश्वर ही इस व्यक्ति के जरिए से बात कर रहा है जो मेरे जीवन के पाप को खुलासे में ले आ रहा है। We should not get offended. इसलिए हमें बुरा नहीं लगना चाहिए। Even when Jesus spoke to the crowd, और जब यीशु मसीह ने भीड़ से बात की, when he fed them 5,000 people, और जब 5,000 लोगों को उसने भोजन खिलाया, they were enjoying the food, खाने में बहुत ही मस्त रहे थे, enjoying the blessing of Jesus.
When Jesus performed miracles, healing, and people are enjoying, so many people, so many crowd are coming to him. और जब यीशु मसीह ने अद्भुत चमत्कार और चंगाई का काम किया तो बहुत सारे लोग उसकी तरफ आकर्षित हुए All enjoyed the blessing of God. और परमेश्वर के सारे आशीषों का लाभ उठाया। But when he spoke the truth, लेकिन जब उसने सच्चाई की बात की when gave the solution to the sinful nature, और जब पाप के स्वभाव के लिए हल बताया when he gave the solution how people can be freed from sin, और जब उसने हल बताया कि किस तरह से लोग अपने पाप से छुटकारा पा सकते हैं when he challenged to repent from sin, और उसने चुनौती दी कि अपने पापों से तुम मन फिराओ that's where people got offended and went. और वहाँ पर देखे कि लोगों को बुरा लगा, ठेस पहुंचा और वहाँ से चले गए। Even the close disciples, the elected one, also left him. और वहाँ पे चुने हुए उसके खास चेले भी उसे छोड़कर चले गए। In same way, even Judas, और उसी तरह से यूदास को भी देखते हैं one of the close disciples, और परमेश्वर के मसीह का बहुत ही करीबी चेला when he got offended, जब उसे ठेस पहुंचा and that's where he went and betrayed Jesus. और फिर वहाँ पर हम देखते हैं कि उसने यीशु मसीह का नकारा। So that's what we always see ourselves, judge ourselves. और इसलिए हमें अपने आप को खुद को जांचना है, परखना है, न्याय में लाना है Why I am getting offended? कि मुझे बुरा क्यों लगता है, Because there is a lot of sin in me, क्योंकि मेरे अंदर बहुत पाप है the pride in me. और मेरे अंदर घमंड है I want to see my own pride. और मुझे अपने खुद के घमंड को देखना है God want to deal with my pride. और परमेश्वर मेरे घमंड को तोड़ना चाहता है That's why God is allowing all the situations, circumstances, and people like that, और इसलिए परमेश्वर ऐसे सारे हालातों को और लोगों को मेरे जीवन में अनुमति देता है so that I can go to Him ताकि मैं उसके पास जाऊं and I could trust Him और मैं उस पर भरोसा रखूं and I could find help in Him. और उसमें मैं सहायता पा सकूं। Jesus has come to deliver us from the spirit of getting offended. और परमेश्वर यीशु मसीह जो है उस आत्मा से हमें छुड़ाने आया है जिससे हमें ठेस पहुंचता है। Only if I have this desire, और यदि मुझ में ये इच्छा है longing that I want to get rid of this getting upset and angry all the time and getting offended, feeling hurt, feeling bad all the time. और यदि मुझे ये इच्छा रखते हैं कि मुझे इस आदत से छुटकारा पाना है जहाँ पर मुझे हमेशा बुरा लगता है, लोगों के बर्ताव से, लोगों के कुछ कहने से हमेशा दुखी हो जाता हूँ, ठेस पहुँचता हूँ, यदि इस आदत से मुझे छुटकारा पाने की इच्छा है तो Then only He can help us. और तभी जाकर परमेश्वर हमारी सहायता कर सकता है। Today I want to help each one of us और आज परमेश्वर हमें से हर एक को मदद करना चाहता to be है free from this spirit ताकि ऐसे आत्मा से हम छुड़ाए रहें which is in me, which in each one of us in our life. और जो मुझ में है हम में से हर एक में ये वास करता है। You want to lead us to godly life. और परमेश्वर जो है भक्ति भरे जीवन में वो हमें अगुवाई करना When चाहता है। Jesus came, He did not just spoke the word like this. He did not just told us we should not get offended. We are blessed if we don't get offended. और यीशु मसीह जब कहा इस बात को कि तुम्हें ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, उसने ऐसे ही इस बात को नहीं कहा, He lived His life. लेकिन उसने उस बात को जी कर बताया। He gave His example उसने एक उदाहरण के तौर पर उस बात को जी कर बताया so that when we can, by following His life, by following His example, कि ताकि उसके जीवन को और उसके उदाहरण को हम पीछे हो लेने we से will be able to overcome. और ऐसे करने से हम जय पा सकते हैं। We all know that Jesus, what all He went through. हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह ने कौन-कौन से हालातों से गुजरे। There are times at His house, even His own house, people told He is out of mind, He is mad. और कई बार उसके खुद के घर के लोगों ने उससे कहा कि ये तो पागल हो चुका है। There are times people told He is glutton and He is wine drinking and drunkard. और कई बार लोगों ने कहा कि ये तो बहुत ही पियक्कड़ है, ये तो बहुत खाना खाता है He is a friend of tax collector and sinners. और ये चुंगी लेने वालों का दोस्त है, पाप करने वालों का दोस्त है He was demon possessed. और ये तो शैतान से ग्रस्त है। He is a prince. Even he went and told him, prince of demons, और उसने उसको ये भी कहा कि तुम तो शैतानों का बाप हो, that you are the leader of the demons. कि तुम दुष्ट आत्माओं का बाप हो। Like that, there are so many times people spoke many things to him. और ऐसे कई बार लोगों ने बहुत सारी गलत बातें यीशु मसीह को कहा He was accused so much. और कई बार उस पर दोष लगाया गया। But when we look at his life, in all the situations, in all the circumstances, लेकिन जब हम उसके जीवन को देखते हैं कि उन सारे हालातों के बीच में he was not offended. यीशु मसीह को कभी बुरा नहीं He had लगा। a good spirit to take it. He was so humble enough, humbled himself. और कितना नम्र था, अपने आप को नम्र किया कि उन सारी बातों को सही रीति से उसने ले लिया। That challenges me and each one of us. और इस बात को मुझे और हम में से हर एक को चुनौती देना चाहिए। He humbled himself. उसने अपने आप को नम्र किया, He trusted God. उसने परमेश्वर पे भरोसा In रखा। all situations, in all circumstances, about the people, he left to God who can judge
who is the only can judge them. और सारे हालातों के बीच में, सारे लोगों के बर्ताव जो गलत बर्ताव थे उनके बीच में उसने परमेश्वर पे भरोसा रखा और न्याय करने की बात जो है उसने परमेश्वर के ऊपर छोड़ दिया। He has set himself a perfect example to each one of us. और हमारे लिए वो एक सिद्ध उदाहरण के तौर पर बना रखा। We are called to follow his life. और हमें इसलिए बुलाए गए हैं कि हम यीशु मसीह के पीछे होकर उसके जीवन को हम भी बिताएं। Jesus always was humble. यीशु मसीह हमेशा नम्र थे। Only the way of being humble, only we will find a solution for this problem. और ये जो समस्या है इसका एक ही हल है, वो है हमें नम्र हो जाना है। Many times I was not seen, I am not humble like this. और कई बार मैंने देखा कि मेरे जीवन में मैं कभी नम्र नहीं रहा। And that's where God deals with us. और इससे परमेश्वर हमसे सुलूक करता है। He loves us. वो हमसे प्रेम करता He है। wants us to make like Jesus Christ in his image. और यीशु परमेश्वर जानता है कि हम यीशु मसीह के समान उसके ही रूप में हम बन जाएं। That's why he allows some situations, circumstances, people like that in our life, और इसके ऐसे कई सारे हालातों को और ऐसे लोगों को हमारे जीवन में वो अनुमति देता है so that he can cleanse us. ताकि वो हमें शुद्ध करे। Even when Jesus was there, तब जब यीशु मसीह थे तब भी, when he was healing people, जब वो लोगों को चंगाई दे रहे थे, one lady came तब एक स्त्री आई। for his daughter. We all know that Syrophoenician woman. वो साइरोफेनिशियन स्त्री जो अपनी बेटी के लिए यीशु के पास आई। That time he even said, I not come, this is not for a dogs. और तब यीशु मसीह ये भी कहा कि मैं जो देता हूँ वो कुत्तों के लिए नहीं है। Even he said about that lady, you are as good as dog. और तब उसने उस स्त्री से कहा, जिस तरह से बताया ऐसा लग रहा था कि वो स्त्री को उसने कुत्ते के साथ तुलना किया। We may wonder why God, Jesus being a son, how he can speak like that. हम शायद सोच सकते हैं कि परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद यीशु मसीह ने ऐसे कैसे बातें कही। Even this lady who got offended and gone, और वो औरत भी उससे शायद बुरा लगकर चली गई हो, but Jesus wanted her to be humble. लेकिन परमेश्वर चाहता था कि उस मौके पर वो स्त्री जो है नम्र हो जाए। And Jesus saw the great humility in her. और परमेश्वर ने उसके अंदर में एक महान नम्रता को देखा। And that's where God blessed her. और इसीलिए परमेश्वर ने वहाँ पे आशीष दी। Another incident, और एक बात, when blind man came, when blind man came, और जब वो अंधा व्यक्ति आए, and that time we know that Jesus just saying simple word he could heal people. और हम जानते हैं कि वहाँ पर सिर्फ कह देने से, शब्द के बोलने से ही वहाँ पर वो चंगाई पा सकते थे। But what happened? He just spit it on the ground and took the mud and put in the eyes. लेकिन हम देखते हैं कि यीशु मसीह वहाँ पर जमीन पर थूककर उस मिट्टी को लेकर उनकी आंखों पर लगाया। Even this person also might have felt, why God you are dealing with me like this? और तब शायद हो सकते है कि वो व्यक्ति सोचा होगा कि परमेश्वर तो ऐसा क्यों कर रहा है। I heard you are son of God, you can heal many people even by saying simple word, but you are dealing with me so badly. Why you are spitting and spit that you putting on my eyes? और फिर वो अंधा व्यक्ति शायद हो सकता है कि सोचा हो कि तू तो परमेश्वर का बेटा है, पुत्र है, तू साधारण से शब्द बोल देने से मैं चंगाई पा सकता हूँ, तू ऐसा क्यों कर रहा है जहाँ पर थूक कर मिट्टी को लेकर मेरे आंखों में लगा रहा है। But that man was very great, humble. लेकिन वो जो व्यक्ति था वो नम्रता में महान था। Because of humility he was blessed. लेकिन वो नम्र होने की वजह से उसे आशीष His मिली। eyes were opened. उसकी आंखें खुल गई Jesus tested his humility. और परमेश्वर ने उसकी नम्रता को परखा। There is another incident और एक घटना है, when a deaf person came to Jesus. जब वो एक डेफ पर्सन उसके पास आया, He was putting his finger on the air. और वो जो अपनी उंगलियों को हवा में ऐसे घुमा रहा He था, was shaking like this. और वो ऐसे हवा में घुमा रहा था। He might be wondering what is happening, why he is doing all these nonsense things. और वो शायद सोचा होगा कि ये ऐसे क्यों बर्ताव कर रहा है, ये ऐसे हरकत क्यों कर रहा Even है। doctor also does not do. They make test, they give me some medicine, but what Jesus is doing? और वैद्य भी ऐसे नहीं करते, वो तो दवा देते हैं, मशवरा करते हैं, लेकिन ये यीशु ऐसा क्यों कर रहा है। But that man that found healing because of his humility. लेकिन वो व्यक्ति जो है नम्र होने की वजह से उसे चंगाई मिल गई। God always wants us to be humble. और परमेश्वर हमेशा चाहता है कि हम नम्र रहें। Sometimes we also wonder, God, why you are dealing with me like this? और कई बार हम भी सोचते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ क्यों ऐसा बर्ताव कर Others रहा are है। enjoying their life, others are having great life, and why I am going to suffer? Why I want to go through such situations, such suffering? Why this sickness to me? और दूसरे लोग जो है कितना मजे से रह रहे हैं, बहुत ही ऐशो आराम से जी रहे हैं, लेकिन मुझे तो इस दुख तकलीफ और क्लेश से क्यों ले जा रहा है। Why you are dealing with me like this? मेरे साथ तो क्यों ऐसा बर्ताव कर रहा है। Why me alone? मैं ही सिर्फ क्यों। But we may not understand.
लेकिन हम समझ नहीं पाएंगे। But in such situations or circumstances, लेकिन ऐसे हालातों के जरिए से when we learn to be humble like Jesus Christ, जब हम यीशु मसीह की तरह नम्र होना सीखते हैं, when we trust God in Romans 8:28, everything happens for good for those who love Him. और जैसे रोम के 8:28 में लिखा है कि सारी बातें भलाई, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें भलाई के लिए उत्पन्न होता है। इस बात पर विश्वास करते हैं तब We can see that God is at work in our life. और तब हम देख सकते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। Our God loves each one of us. और परमेश्वर हमें से हर एक को प्रेम करता है। He has great goal to make each one of us to be like His Son Jesus Christ in every area. और उसका महान उद्देश्य ये है कि हर एक क्षेत्र में हमें वो यीशु मसीह के समान बनाना चाहता है। That's why He said, "Blessed are those who are not offended at me." और इसलिए वो कहता है कि धन्य है वे जो मेरे कारण ठोकर नहीं खाते। So Jesus, He could overcome such situation और यीशु मसीह ऐसे हालातों पर जय पा चुके, because of a great humility, लेकिन उसकी महान नम्रता की वजह से ऐसा हुआ है। and also He was filled with the Holy Spirit. और वो पवित्र आत्मा से भी भरे हुए थे। That helps us and leads us to the necessity of the Holy Spirit in our life. और इससे हम जानते हैं कि कितना जरूरी है कि हमारे जीवन में भी पवित्र आत्मा से हम भरे रहें। And many times I like this side that though I speak about, but there are times that I, without the Spirit, without His grace and help, I am not able to overcome. और कई बार तो मैं बोलता हूँ, लेकिन मेरे जीवन में भी एक खामी हो जाती है और मैं देखता हूँ कि पवित्र आत्मा के बगैर, उसके आत्मा के बगैर मैं जीने की कोशिश करता हूँ। That's where God shows my own need. और फिर तब परमेश्वर मेरी जरूरतों को मुझे बताता है To learn from Jesus the humility कि यीशु मसीह से मैं उस नम्रता को सीख लूं and asking God's grace. He gives grace only to those who are humble. और फिर परमेश्वर से हम अनुग्रह को मांगे, क्योंकि परमेश्वर जो है, जो नम्र लोग हैं, उन्हीं को वो अनुग्रह देता है। Because when you are proud, क्योंकि जब हम घमंड होते हैं, Satan takes advantage of us. तब वहाँ पर जो है शैतान हमारा लाभ उठाता And है। God opposes the proud. और परमेश्वर जो है घमंडी व्यक्ति का द्वेष करता है। But when I become humble, लेकिन जब हम नम्र होते हैं, He gives great grace. तब वो हमें अनुग्रह से भरता है। When we ask for the Holy Spirit, जब हम पवित्र आत्मा को मांगते हैं, He is willing to fill us. और फिर वो हमें भरने के लिए वो राजी हो जाता है। And when we are filled with the Holy Spirit and grace of Him, और जब हम पवित्र आत्मा और उसके अनुग्रह से भरे हुए रहते हैं, that's where we are able to overcome. और वहाँ पर हम जय पाते हैं। God has called us to be overcomers. और परमेश्वर ने हमें जयवंत होकर जीने के लिए बुलाया है। Lastly, one word I just want to book of Psalms chapter 119. और आखिर में एक वचन बताना चाहता हूँ कि भजन संहिता उसके 119 verse 165. और उसका 165। भजन संहिता 119 165 का वचन। जो तेरी व्यवस्था से प्रीति रखते हैं, उन्हें बड़ी शांति मिलती है और उनको किसी बात से ठोकर नहीं लगती। Amen. This is another word which is encouraging us. और एक वचन है जिससे हम प्रोत्साहन मिल सकती है। That's how those who love God's word, the love and who meditate on God's word and who love the Jesus Christ, love God in their heart, and that's where we find peace, and nothing will cause me and each one of us to stumble. और हम देखते हैं कि इस वचन में लिखा है कि जो कोई परमेश्वर की व्यवस्था से प्रीति रखते हैं, उन्हें बहुत ही बड़ी शांति मिलती है और कभी भी उन्हें बुरा नहीं लगता। God's word has tremendous power. और परमेश्वर के शब्द में, वचन में बहुतायत का एक सामर्थ है। Through His word, He created the whole heaven and earth and whole universe. और उसके वचनों के जरिए से उसने आकाश और पृथ्वी और सारे मंडल को बनाया। Through His word, He healed so many people and so many sickness. और उसके वचन के जरिए से कितने लोगों को और बीमारियों को से चंगा किया। His word has tremendous power. Jesus said that everything will pass away, the heaven and earth will pass away, but my words will be lasting forever. एक परमेश्वर का वचन में बहुत ही बड़ा सामर्थ है। जैसे यीशु ने कहा कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन परमेश्वर के वचन में से कोई एक शब्द बिना पूरे हुए टलेगी नहीं। We are able to trust His word, और हम परमेश्वर के वचन पर भरोसा कर पाते हैं, obey His word, उसका आज्ञा मानने को सीखते हैं, and trust His promises, और उसके सारे वाचाओं पर भरोसा करना सीखते हैं, and He is able to deliver us from every sin in our life. और फिर हमारे जीवन में हर एक पाप से वो हमें छुड़ाने के लिए विश्वास योग्य है। May God bless us.